Good evening, sir. अच्छा, सो सेक्शन ए से कौन कौन हो? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सेक्शन ए? मुस्कान। ओके, तो आज हम देखेंगे इलास्टिक कोलिशन एंड इनलास्टिक कोलिशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और आफ्टर आफ्टर इनलास्टिक कोलिशन दो सेक्शन में हो गया है ना? सेक्शन बी, इन इलास्टिक कोलिशन हुआ है। ओके, प्रियंकर कंसा, क्लास रिकॉर्ड कर देना, ठीक है ना? चलो, so let us start today's class, that is about the elastic and inelastic collision, जो जिसका थियरी हमने प्रीवियस क्लास में किया था और क्लास में भी डिस्कस किया है। और इनलास्टिक कॉलिशन में जो हुआ था उसका वेलोसिटी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, और रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो हो गया था। उसमें दो हमने कंडीशन लगाया था। और सेक्शन बी में हुआ था शायद वो इलास्टिक कॉलिशन इन टू डायमेंशन, राइट, इलास्टिक कॉलिशन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कॉलिशन इन 2D, ये हो गया ना सेक्शन बी? सेक्शन बी से कौन कौन है? प्रिंस Present, sir. हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हुआ है सर। एक बात बताओ, ग्लैंसिंग कॉलिशन क्या है बताओ? तो हम थोड़ा सा और देखेंगे। सर मैं बोलूं? when, हाँ बताओ। सर अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो हाँ, एक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलिजन होगा और द M2 वो M1 के साथ ट्रैवल करेगा। अच्छा, तो देखो क्या होगा, when the collision is elastic collision and it is on a plane, that is not in a straight line, okay, then after collision both the object or both the particle will move in a different direction, right? So their velocity will be something like v1 and its velocity is v2। तो ये m1 जो ऑब्जेक्ट है, दिस हैज वेलोसिटी u1 और m2 का वेलोसिटी u2। और ये जो u2 है ये क्या है? ये u2 जीरो है क्योंकि ये रेस्ट में है, ठीक है ना? अब u1 m1 first object will collide on the second object, and it is not in a straight line because the collision is not a hidden collision with a certain angle, right? It is with a certain angle. Then you will see that the motion of the two particle in two different direction. One is v1, is another one is v2. Then yeah, when you will calculate the component of velocity in two different direction, one is along x and another is along y, then you will get the component of velocity v1, that is for mass m1, and component of velocity v2, that is for mass m2. It has two components. Number one, the angle is theta 1,
for first particle, and for the second particle the angle is theta 2, right? The angle is theta 2. Then you will see that, then what you will see, that is towards the x-axis, the component of velocity v1 is v1 cos theta 1, and that is for v2, it is v2 cos theta 2, right? And same thing for perpendicular component, that will be v1 sin theta 1, and it will be v2 sin theta 2. यही तो था, राइट? यही था ना? तो ये दो वेलोसिटी जो है, एक जो x कंपोनेंट में है, तो ये किसके लिए आया है? The x component of velocity of the two particle is due to the initial velocity of the first object, that is e1, right? Because the second object was in rest, the first object was in motion. Then you will write from the conservation of linear momentum. You will write from conservation of linear momentum. What you will write? Towards x-axis, towards x direction, you'll see that m1 u1 is equals to m1 v1 cos theta 1 and plus m2 v2 cos theta 2, राइट? ये दो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक्स कंपोनेंट है। m2 v2 cos theta 2। तो यहाँ से हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा है, टाइप, दैट इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर लिख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाट यू विल गेट? अच्छा, सेम फॉर, इट इज फॉर एक्स डायरेक्शन, सेम फॉर वाई डायरेक्शन, सेम फॉर वाई डायरेक्शन यू विल गेट, वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी था, तो y direction में initial velocity was 0, but you are getting two different velocities in two different direction, right? That is v1 sin theta 1 will be exactly opposite to v2 sin theta 2, right? So v1 sin theta 1 plus v2 sin theta 2, the summation of these two velocity will be 0. This is equation 2. Now when we will move forward towards the conservation of kinetic energy, तो लिखो conservation of kinetic energy। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ से तुम्हें मिलेगा हाफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और सेकंड का तो 0। तो आफ्टर कॉलिशन क्या होगा? बिफोर कॉलिशन ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कॉलिशन क्या मिलेगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, राइट? ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से तुम्हें हाफ दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट यू आर गेटिंग लाइक समथिंग m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। सो 1 2 3 थर्ड इक्वेशन। तो ये तीन इक्वेशन हमें मिलेगा, और तुम्हारा वेरिएबल कितना है? वेरिएबल है 4 वेरिएबल्स। वेरिएबल से हमारा थीटा 1 थीटा 2, उसके बाद v1 v2, 4 वेरिएबल है, और तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है, राइट? तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, बिकॉज जितने वेरिएबल होंगे उतना इक्वेशन चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम क्या लगाएंगे? कंडीशंस। कंडीशन में क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज if the collision between the two particle is like glancing collision. The first thing is glancing collision. Glancing collision. ये ग्लैंसिंग कॉलिशन क्या है? देखो, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जस्ट टच करके आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? वन इज मूविंग, अनदर इज रेस्ट, बट वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट टचिंग द अनदर ऑब्जेक्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड। दैट मीन्स तुम्हारे पास एक
कैरम समझ लो, कैरम का एक स्ट्राइकर है, तुम इसको स्ट्राइक कर रहे हो आगे, और एक दूसरा जो कैरम का ही है ना, वो एकदम इसको टच करके निकल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर जो है क्या है, इसका जो V2 आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री है ना, दोनों के बीच Yes, का sir. जो एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज theta 2 is approx equals to 90 degree, then the collision we are considering is glancing collision, and in that case theta 1 तो जो डायरेक्शन था 0 वही है, degree. 0 डिग्री, ये भी approx equals to 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ना M1, ये क्या करेगा, इसको जस्ट टच करके निकल जाएगा, तो इसका कोई एनर्जी ट्रांसफर इसके ऊपर नहीं होगा। दैट मीन्स सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। तो इसमें तुम्हारा क्या मिलेगा, इसका इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी था वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ मैच हो जाएगा, राइट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ मैच हो जाएगा। वही हम देखेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे θ1 0 डिग्री, θ2 90 डिग्री। ये दो कंडीशन में हम देखेंगे इसका एनर्जी इक्वेशन से क्या आ रहा है एंड ये मोमेंटम ये से कहाँ क्या आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ linear momentum equation, you are getting m1 u1 m1 v1. So the equation is m1 u1 equals to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2. Now put the value theta 1 0, theta 2 90, and we all know that cos 0 is 1 and cos 90 0, right? So this second value will be equals to 0, and So this the value will be M1 equals U1 is equal to M1 V1. ये 1 होगा और ये 0 होगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, यू आर गेटिंग लाइक m1 u1 equals to m1 v1, क्योंकि m2 v2 0 हो गया है, राइट। तुम्हें m1 दोनों साइड का है, तो तुम्हें मिलेगा e1 इक्वल्स टू v1। ये e1 क्या है, e1 था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी, और v1 क्या था, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिशन, राइट। ये बिफोर कॉलिशन, ये आफ्टर कॉलिशन, तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, सेम हो रहा है। दैट मीन्स नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, इसका काइनेटिक एनर्जी जो था वही है बैलेंसिंग कॉलिशन के लिए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन से, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वहाँ से क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर्ड इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये तो था, ठीक है। पर सेकंड पार्टिकल तो मूव ही नहीं, मूवमेंट तो है ही नहीं, सेकंड पार्टिकल है क्या, सेकंड पार्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं है, तो v2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, अगर v2 0 है तो क्या मिलेगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर। दैट मीन्स जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम, और ये हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 0. ठीक है ना। तो यही अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, सेम थिंग, इसको ध्यान से देखना, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो इसमें तुम लिख सकते हो इन फॉर ग्लैंसिंग कॉलिशन, यू कैन राइट फॉर ग्लैंसिंग कॉलिशन the incident particle does not any lose any kinetic energy, right, kinetic energy। अच्छा, दैट मीन्स जो स्ट्राइकर से तुम हिट कर रहे हो, अगर वो छोटा जो एक दूसरा जो होता है ना कैरम में, वो सिर्फ टच करके निकल जाए टेंजेंशियली,
तो इसका एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा शिफ्ट, हल्का शिफ्ट होगा, बट अगर एग्जैक्ट क्लेंसिंग है तो इसका कोई शिफ्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट, कोई वेलोसिटी वो अचीव नहीं करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हेड ऑन collision, हेड ऑन collision। सो हेड ऑन collision में क्या है, सेम चीज है, वो जस्ट टच करके बाहर जा गया था, राइट, और ये क्या करेगा, हेड टू हेड कोलाइड करेगा। दैट मीन्स एक दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर हम बोलते हैं तो एक का सेंटर ऑफ मास दूसरे को सेंटर ऑफ मास को ये करेगा, हिट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें जो मिलेगा थीटा टू, तुम्हें जो थीटा टू मिलेगा वो मिलेगा 0 डिग्री, ठीक है। थीटा वन भी तो हाँ, आफ्टर कोलिशन थीटा वन 180 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं हेड ऑन कोलिशन के लिए थीटा टू 0 डिग्री। देन इक्वेशन वन से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन वन में देखो एम वन यू वन क्या था, एम वन यू वन इक्वल्स टू एम वन यू वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा टू। यहाँ पर थीटा टू तुम 0 लगाओगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ एम टू वी टू मिलेगा। और यहाँ पर क्या लगाओगे, हाँ, तो तुम्हें मिलेगा एम वन यू वन मिलेगा एम वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू, राइट। तो और एनर्जी का इक्वेशन क्या मिलेगा, एम वन वी वन साइन थीटा वन, एनर्जी में क्या था, अच्छा फ्रॉम इक्वेशन टू वहाँ पर क्या था, 0 इक्वल्स टू एम वन वी वन साइन थीटा वन प्लस एम टू वी टू साइन थीटा। तो साइन थीटा वन हमने क्या लिया है, थीटा वन का वैल्यू, थीटा टू का वैल्यू गिवन है कि हेड ऑन कोलिशन है 0 डिग्री, तो साइन 0 मीन्स 0, तो ये मिलेगा एम वन वी वन साइन थीटा वन दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसका कंडीशन क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, प्रिंस बताओ, यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, थीटा वन, तो तुम्हें यहाँ से तुम लिख सकते हो साइन थीटा वन, राइट, यहाँ से लिख सकते हो साइन थीटा वन साइन थीटा वन सर क्या थीटा होगा, वन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा वन भी 0 डिग्री ना, यस सर, क्योंकि सर साइन थीटा वन तो मतलब 0 है ना, तो सर थीटा 0 डिग्री है, फिर 180 डिग्री। 0 या 180 दोनों में से एक होगा। तो ये डिपेंड करेगा दोनों का जो मास है ना, मास के ऊपर, क्योंकि पूरा काइनेटिक एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो हम, अगर दोनों का मास सेम है तो क्या होगा, हिडन कोलिशन में वन ऑब्जेक्ट विल बी रेस्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट विल टेक द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट, ये सब। अगर यस एक सर। रेस्ट में है तो दूसरा मोशन में, दोनों का मास सेम है, तो एक एक रेस्ट में आ जाएगा, दूसरा उसी वेलोसिटी लेके आगे बढ़े, एक बात है, हो गया। और दूसरा अगर एम वन इज ग्रेटर देन एम टू, तब क्या होगा, अगर उसका, हाँ, अगर एम वन इज ट्वाइस एम टू, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछता है। हाँ, इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो हम देखेंगे कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है। इसमें एक फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला आएगा कुछ 4x² बाई, क्या आएगा, 4, ऐसा एक फॉर्मूला आएगा तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा फॉर्मूला आएगा 4x², 4 कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम होल स्क्वायर, 4 कैपिटल एम स्मॉल एम, और तुम लिख सकते हो 4 m1 m2
बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। यह आएगा ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज k2 बाय k1। ये वैल्यू हम प्रूफ करेंगे, एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, तो ये हम आज प्रूफ करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट थीटा 1 थीटा 2 दोनों जीरो। 1 सेकेंड कॉल आ रहा है। तो ये हेड ऑन कॉलिशन का एनर्जी ट्रांसफर वो हम देखेंगे इक्वेशन में, ठीक है ना। बाद में जो आएगा इलास्टिक कॉलिशन फॉर टू आइडेंटिकल पार्टिकल। ओके, थर्ड पॉइंट इज जब दो पार्टिकल आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है ना, दैट मीन्स m1 एंड m2 ये दोनों सेम है। तो टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, इलास्टिक कॉलिशन in two dimension for two identical particles, okay? Two identical particles। तो टू अगर अगर दो पार्टिकल आइडेंटिकल है लाइक बिलियर्ड बॉल्स, तो क्या मिलेगा तुम्हें, तुम्हें सभी का m1 m2 ये जो है सब कुछ m बिठाओगे, तो तुम्हें इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, mu1 mv1, राइट, mv1 cos theta 1 प्लस mv2 cos theta 2। अच्छा, तो m यहाँ से जाएगा तो तुम्हें मिलेगा e1 इक्वल्स टू v1 cos theta 1 प्लस v2 cos theta 2, राइट, ये मिलेगा, यही मिलेगा। और इसके बाद हाँ, तो इसके बाद क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी जब हम देखेंगे, जब हम क्या देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तब तुम्हें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 यू आर गेटिंग हाफ m e1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ये v1 क्या है, आफ्टर कोलिशन velocity of the first particle and after collision velocity of the second particle। हाफ m दोनों सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट v1 square equals v1 to square plus v2 square। v2 square, and this value is nothing but v1 square plus v2 square जो है, ठीक है ना। तुम क्या लिख सकते हो इसको, हम यहाँ से क्या देखेंगे, इसका हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसका हम अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे उसमें। तो लीनियर मोमेंटम से तुम्हें क्या मिल रहा था, लीनियर मोमेंटम से तुम्हें क्या मिल रहा था, तुम्हें मिल रहा था m u1 इक्वल्स टू m v1 प्लस m v2। तो u1 इक्वल्स टू v1 प्लस v2, और ये वेक्टर साइन के साथ है, ठीक है ना। ओके, तो वेक्टर साइन के साथ होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा वेक्टर को मानेंगे, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो तुम्हें अगर ऐसा लिखेगा u1 वेक्टर u1 डॉट वेक्टर u1, देन इट इज नथिंग बट v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस v2, दोनों वेक्टर साइन है, तो हम cos a नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा u1 स्क्वायर, राइट, u1 स्क्वायर मिलेगा ना, u1 स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स u1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। तो u1 स्क्वायर का ये जो वैल्यू है यहाँ पर लगा, तो ये मिलेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2,
and दोनों side से this v1 v2 will be cancel out, then you are getting something like that is equals to 0. That means vector v1 dot vector v2 is equals to 0. This is nothing but v1 is perpendicular to v2, right? That is the angle between them is 90 degree, because v1 dot v2 is nothing but v1 v2 cos थीटा, और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री है, राइट? ओके, तो एक कंडीशन जो है यहाँ से हमें मिलेगा फॉर टू आइडेंटिकल पार्टिकल when they are colliding in elastic collision on a plane, if it is not a head-on collision, if a collision with certain angle, then you see that both of the particle will move with a certain direction, which is their final direction, their final direction of motion. If they are moving with velocity v1 and v2, their dot product is something about 0. That means the angle between them will be certainly 90 degree, right? Okay. Okay, any doubt? यहीं से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी उठाओगे तो यहीं से क्वेश्चन मिलेगा 2 बिलियर्ड बॉल का, है ना? यू विल गेट अ क्वेश्चन सर आस्किंग देयर 2 बिलियर्ड बॉल्स. देखो एनसीईआरटी है सामने, खोलो एनसीईआरटी. एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था वो ये है, देखो जो हमने, हाँ, consider the collision depicted between the two billiard balls with equal mass. The first ball is called the cue, second ball is called the target. The billiard player want to sink the target ball in a corner pocket. ठीक है ना? तो क्या करेगा? कॉर्नर पॉकेट में लगाने के लिए तुम्हारा जो प्रोजेक्शन एंगल है वो है थीटा 2 37 डिग्री. अच्छा, कॉर्नर पॉकेट जो है 37 डिग्री में है, तो तुम्हारा वो थीटा 1 क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन है. 1 सेकंड, आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन. अच्छा, एक काम करना, तुम क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन हम बाद में भेजेंगे, स्कैन करना पड़ेगा. तो ये जो क्वेश्चन है इसका डेरिवेशन पूरा यही है जो हमने यहाँ से किया है ऊपर से. ये जो 2 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिशन है, ठीक है ना, आइडेंटिकल पार्टिकल, ये करोगे m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेम है डेरिवेशन. दैट इज यू हैव टू शो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. अभी तुम्हें जो बोला है ना, एक बिलियर्ड बॉल, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल तुम हिट कर रहे हो, तुम्हारा जो पॉकेट है इस डायरेक्शन में, कोई पी पॉइंट पे है यहाँ पर पॉकेट, तो एक बॉल इस साइड जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो है इनिशियल डायरेक्शन के साथ ये हो गया 37 डिग्री. तो दूसरा क्या होगा बताओ? 90 माइनस 37 होगा, राइट? ये सुन यहाँ से 53 डिग्री. 53 डिग्री. तो तुम यही कंडीशन लगाओगे कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 is 90 degree. This is the condition of similar particle, right? m1 equals to m2 and theta 1 is given, then theta 2 will be 90 minus theta 1. यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ से तुम्हें 53 मिलेगा. ये कर लें. नेक्स्ट चलो अब हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल हमने ग्रुप में भेजा है, एक एक करके लाते हैं. कोई डाउट है यहाँ पर? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? देन प्लीज आस्क. यहाँ पर जो बाद में आए हो थोड़ा सा सुन लो. जो डिस्कस हुआ है, ठीक है ना, जो डिस्कस हुआ है वो क्या है? इलास्टिक कोलिशन. हमने इलास्टिक कोलिशन क्लास में 1 डायरेक्शन में किया था और ये इलास्टिक कोलिशन 2 डायमेंशन में, ठीक है ना. थियरी देख लेना, अगर डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछना. यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया ग्लैंसिंग कोलिशन के लिए, और एक ग्लैंसिंग कोलिशन क्या है? अगर दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना. जब while one object is colliding in another, ये जो है सीधा इस साइड आ रहा है. ओके, यहाँ पर हमने देखा है. इसके बाद हमने इसका पॉइंट लिखा. उसके बाद जो आएगा हेड ऑन कोलिशन के लिए क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये डिपेंड करेगा इसके मास के ऊपर, जो हम थोड़ी देर बाद प्रूफ करेंगे. इसके बाद हमने देखा दोनों का मास इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा.
आइडेंटिकल पार्टिकल, जो बिलियर्ड बॉल का न्यूमेरिकल आता है। अगर आएगा तो तुम ये करोगे थीटा 1 थीटा 2 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 1। इज इट विजिबल? दिख रहा है सभी को? कैन यू सी द क्वेश्चन एवरीवन? यस सर। ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करो खुद से करने की कोशिश करो। देखो एक स्टेप में हो जाएगा ये पूरा, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है, एक सेकंड इसका थोड़ा सा कलर चेंज करा दो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ब्लैक, रेड, हाँ। क्वेश्चन में देखो, टू बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 3 kilogram moving in the same direction along the same straight line with velocity 5 meter per second, 3 meter per second। दो बॉडी है, दो बॉडी है, ठीक है ना। दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था। एक हो गया तुम्हारा 5, एक है 5 किलोग्राम और दूसरा है 3 किलोग्राम। 5 kg, 3 kg, ओके। अब इसमें क्या बोला है? सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था। एक का वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का वेलोसिटी क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, एक u1, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इज कॉल्ड u1 एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड u2, राइट। वी आर assuming that when we are deriving the problem. So we all know that after collision velocity of m1 is v1 and velocity of m2 is v2, yes or no? So before collision and after collision you have to find out what will be the scenario. This is m2, this is velocity v2. Then what will be the velocity? What is asking in the question? Find the velocities after collision. तो यहाँ पर जब 5 दिया है, 3 दिया है और ये m1 और m2 है, राइट। तो यहाँ पर तुम देखो m1, m2 और ये क्या है? u1 और क्या है? u2, ठीक है। अब तुम्हें v1 एंड v2 फाइंड करना है, ये सर ना तो कर पाओगे? जनरल फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला क्या था? m1 by m1 plus m2। v1 का एक फॉर्मूला था ना। सो general formula from beyond will be something like that: m1 minus m2 divided by m1 plus m2, right, multiplied by u1 plus twice m1 u1। अच्छा, क्या था? m1 minus m2, m1 plus m2 into u1 plus twice m1 u2 divided by m1 plus m2। कॉपी खोलो, थ्योरी देखो। थ्योरी में हमने ये प्रूफ किया था, राइट, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम and from conservation of kinetic energy. When you are solving the two equation, you are getting when you are putting value v2, then you are getting v1. When you are putting the value v1, you are getting value v2, and v2 is something like m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into u2 plus twice m2 by m1 plus m2 into u1। ये था दो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। अब तुम इस इसी फॉर्मूले में तुम ये लगाओ, जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2, देन वी आर गेटिंग फ्रॉम v1 what you will get? You will getting v1 is nothing but m1 is 5 minus 3 divided by 8 into 5 plus 2 into 5। बताओ this कितना है? What is your value? सेक्शन ए में कौन कौन हो?
How many students are from section A? Devarga, Priyankar Kansa, Robert, and Sir, 55/8. 55. शायद. अच्छा, तो यहाँ से तुम्हें 2/8 मिल रहा है, मतलब 1/4, दैट मीन्स 5/4, राइट? सो 5/4 प्लस 15/4, right? Then you are getting 20/4, that is 5 meter per second. कितना है? कितना है? V1 2 into m2 था ना, 2 into m2 का वैल्यू 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, 2 into 3 into 3, then you are getting 9/4, 14/4 आएगा, क्या आएगा? 14/4, then 7/2, nothing but 3.5 3.5 per second. Clear? एंड सर V2 होगा सर 5.5 मीटर पर सेकंड. हाँ, देन योर टास्क इज टू फाइंड आउट V2. ये हमने नहीं करा था, ये तुम खुद करोगे. सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करो. ठीक है, यू कैन डू दैट, राइट? यस और नो? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2. देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो, क्या लिखा है. A 10 kilogram ball and 20 kilogram ball approach each other with velocity 20 meter per second and 10 meter per second, right? What is the velocity after collision if it is a perfectly elastic collision? Okay, तो तुम क्या करोगे? उसमें क्या था, दोनों का velocity एक ही डायरेक्शन में था, right? But here they have said that 10 kilogram and 20 kilogram approach each other. That means they are in opposite direction. Their initial velocities are in opposite direction, right? So ये कितने का है? 10 किलोग्राम और ये 20 किलोग्राम. इसका वेलोसिटी है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? 20 मीटर पर सेकेंड. और इसका कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकंड. इसका हम बोलेंगे U1, इसका हम बोलेंगे U2. U2 हाँ, तो U2 सर्टेनली क्या है? माइनस हो रहा है, -10 मीटर पर सेकंड. हाँ, तो U2 हमें पीछे है, तो U2 का वैल्यू होगा तुम्हारा -10 मीटर पर सेकेंड. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो तुम्हारा ये M1, ये M2, ये U1, ये U2. अब तुम्हें क्या करोगे? तुम सिर्फ सिंपल फार्मूला लगाओगे, V1 V2. V1 का फार्मूला क्या है बताओ? M1 - M2 by M1 plus M2 into U1 twice M1 by M1 plus M2 into U2. तो जब V2 करोगे, कुछ नहीं करोगे, डिनोमिनेटर का जो नंबर है, तो ऑल द नंबर्स, द डिनोमिनेटर ऑफ द variables, you will change the denominators, right? Where there is 1, you will put 2, and when there is 2, you will put 1. Then M2 minus M1 divided by M1 plus M2 is into U2 plus twice M2 divided by M1 plus M2 into U1. तो तुम क्या करोगे? From here, from these two equation, you can find out all the values. So V1 will be something about M1 is something about कितना आएगा? यहाँ से आएगा 10 -40/3. -40/3. तो V1 अगर माइनस आएगा तो ये जो आफ्टर कोलिशन वो पीछे आएगा ना, क्योंकि वो तो Yes, sir. लाइट ऑब्जेक्ट है और ये मैसिव है, तो जो लाइटर है वो पीछे जाएगा. तो V1 का वैल्यू तुम पुट करो 10 - 20 divided by 10 plus 20 into U1. U1 that means 20 plus twice
into 10 divided by 30 into u2 क्या है माइनस 10 राइट, ये तो वैल्यू आएगा। तो माइनस क्या आएगा 200 divided by 30 plus minus Minus 200 divided by 200 30. by 30, तो माइनस क्या आएगा 400 divided by 30, 40 by 3, you are getting something like Minus that, 40 by 3. 13 point something right। और तुम लिख सकते हो -40/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है v1 है, तो इसके मतलब क्या है, इट इज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आफ्टर कॉलिशन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड। देखो यहाँ पर आफ्टर कॉलिशन इट इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 मूविंग बैकवर्ड। ओके, or same you'll do for v2, right? When you are putting the value v2 here, you'll get some value here, you have to find it out v2. So Value should these be these positive, sir. this value should be positive because m2 is greater than m1, so that the energy of m2 is greater than kinetic energy is greater than m2, so it will dominate and m1 will change. Okay, so these are the two basic problems, the initial two problems. Now we are moving forward. Third problem. The question is, अच्छा देख लो, किसी को लिखना बाकी है तो लिख लो, ठीक है ना। If you are trying to take screenshot, then you can take it. I am moving forward. कोई भी डाउट होगा उसी टाइम पूछोगे। सर वहाँ पे M2 माइनस M1 क्यों करना है, मतलब वो क्यों वो करना है ऑपोजिट, चेंज कर कहाँ देना। पर होता इक्वेशन का बात कर। D2 is equal to M2 minus M1, लास्ट क्वेश्चन, You are asking, पिछले वाला you are क्वेश्चन। asking about the equations, right? यस सर। So equations are they are proved by the theory, right? तो यहाँ पर हमने कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम प्रूफ किया था। तो हाँ प्रूफ किया वो था नहीं, उसका बाद वाला उसका। ये क्यों चेंज होगा। तुम जब इसको प्रूफ करोगे ना, तब तुम ये वेलोसिटी लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, u1 प्लस u2 इक्वल्स टू v1 प्लस ऐसा कुछ था ना, सॉरी अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। यहाँ से तुम जब v2 का वैल्यू फाइंड करके मोमेंटम के इक्वेशन में पुट करोगे तब तुम्हें मिलेगा v1। अब यहाँ से v1 फाइंड करके जब तुम मोमेंटम की इक्वेशन में पुट करोगे तब तुम्हें मिलेगा v2। भवेश यस सर। आया। सर 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, डेरिवेशन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो एवरीवन, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है टू बॉल बियरिंग ऑफ मास m, दो बॉल है, दोनों का मास m है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड v। दोनों बॉल एक ही मास का है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव हो रहा है with head on collision. Predict the outcome of the collision assuming it to be perfectly elastic. अगर ये collision perfectly elastic है, after collision what will be the velocity of v1 v2 and what will be the direction of their motion, m1 m2, दोनों m है, m1 equals to m2 equals to m। अब तुम क्या करोगे, इक्वल स्पीड, इसका भी v है और इसका भी u है, इसका भी u है, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो u1 u2 और u1 इक्वल्स टू v, u2 इक्वल क्या होगा, माइनस अगर v। ये v होगा तो माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस। अब तुम वैल्यू में पुट करो v1 एंड v2, फाइंड करो तो क्या होगा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अभी तो पूरा याद हो गया ना इक्वेशन, u1 ट्वाइस m1 u2 बाई m1 प्लस m2, यही तो था।
m1 m2 ये सब क्या हो जाएगा, ये सब इक्वल है तो 0 हो जाएगा फर्स्ट लास्ट। So V1 is equals to minus V. माइनस, तो ये हो जाएगा u2। तो ये u2 क्या है, u2 का वैल्यू माइनस v है ना, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, v1 is equals to minus v। बट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट दिस वैल्यू, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, So final velocity of the first object. फास्ट ऑब्जेक्ट, तो फास्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन पीछे So आएगा। after collision, it will move backward. हाँ, ये था v, ये था u1 इक्वल्स टू v, और ये v1 हो जाएगा माइनस v, पीछे आ रहा, ठीक है ना, सेम चीज पीछे आएगा। तो सेम होगा v2 के लिए भी सेम होगा, राइट, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए भी एक ही काम होगा। तो ये इलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा आफ्टर कोलिजन। और ये प्रूफ, दिस इज ओनली ट्रू फॉर द एटॉमिक एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स, ओके, all the collisions between the electrons and all the subatomic particles, these are the elastic collisions, and if two electrons are colliding with each other, they will move, if it is a head-on collision, then they will move exactly backward, or if it is not, then their theta 1 plus theta 2 will be 90 degree, जो हमने कुछ देर पहले देखा। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लिख लो, इसको लिखना है, फटाफट लिख लो। Sir. हाँ, So can you please tell the general form for V2, sir? general formula for v2, just change Yes, all sir. the denominators, change all the denominators, that is m1 into m2, sorry 1 into 2 and 2 into 1, चिप चेंज कर दो, 1 को 2 करो, 2 को 1 करो, बस, okay, change the value 1 into 2 and 2 into 1, then you are getting v2। देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट इज रियलिस्टिक क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन इज सेइंग अ रेलवे कैरियज, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोला है, रेलवे कैरियज ऑफ मास 9000 किलोग्राम मूविंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर कोलाइड एंड स्टेशनरी कैरियज, एक कैरियज जो है, मतलब जो एक बॉगी है दूसरे बॉगी के ऊपर हिट करेगा, ठीक है ना, मतलब कोलाइड हो जाएगा, तो उसका मास है 9000 एंड स्पीड है 336 किलोमीटर पर आवर, कोलाइडिंग द सेकंड कैरियज, सेम मास, कुछ और रेस्ट में है, ठीक है ना, तो ये हो गया m1 और ये हो गया u1, और m2 भी सेम है, राइट, ये m1 है, दैट इज इक्वल्स टू m2, और u1 हो गया। तो पूछा क्या है, आफ्टर द कोलिशन द कैरियज गेट कपल्ड, ध्यान देना यहाँ पर देखा है कपल्ड मीन्स इन इलास्टिक कोलिशन, इन इलास्टिक कोलिशन हमने तो वही पढ़ा था ना, कपल मीन्स एक दूसरे के साथ, दोनों एक साथ मूव करेगा, ठीक है ना, m1 m2 एक साथ मूव करेगा, तो ये हो गया इलास्टिक कोलिशन, फाइनल वेलोसिटी v, व्हाट इज देयर कॉमन स्पीड, दैट इज v, व्हाट टाइप ऑफ कोलिशन दिस इज, हमने बोल ही दिया है, अगर कपल है तो इनइलास्टिक, अगर सेपरेशन है तो इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, इनइलास्टिक कोलिशन का फॉर्मूला लगाओ, राइट, तो क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, तो लिखो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कैरियज, initial velocity of the carriage that is 9000, right, 9000, और वेलोसिटी क्या था 36 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड जो कैरियज था वो क्या था, रेस्ट में था, तो तुम लिखोगे हाफ m1 u1, सॉरी मोमेंटम ना, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v, तो u2 तो 0 है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, मिलेगा m1 u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v, तो m1 का वैल्यू क्या है 9000,
और U1 क्या है? U1 क्या है बताओ? U1 0 sir. हाँ, U1 क्या आएगा? U1 0 आएगा, U2 0 आएगा। Sir, sorry sir, ठीक है, 10 आएगा sir, 10 शायद। 10 आएगा, 10 मीटर पर Yes, sir. सेकंड, राइट? Yes Sir, sir, 10 आएगा. हाँ। velocity तो हम्म, Yeah. क्या आएगा? वो तब ठीक है. वेलोसिटी दिया है U1 जो प्रोवाइड किया है 36 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पता है, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 5/18 से 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू आर गेटिंग 10 मीटर 10 पर मीटर पर सेकेंड. सेकेंड, क्योंकि ये एसआई यूनिट है और ये सब एसआई यूनिट में है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है v और तुम्हें मिलेगा m1 प्लस m2 इंटू u1। तो m1 का वैल्यू है 9000 और यहाँ पर आएगा 9000 प्लस 9000 18000, u1 है 10। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, नीचे 2 5 और meter per 10, second sir. 5 मीटर पर सेकंड। सिंपल कैलकुलेशन, राइट? Yes sir. Next, so it is the final velocity. It is an inelastic collision, and after attaching all the both carriage, they will move with a velocity 5 meter per second, right? तो अगर तुम्हें एक और क्वेश्चन पूछे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और व्हाट इज द एनर्जी वेस्टेड, राइट, जो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हीट और वाइब्रेशन, साउंड एक्सेट्रा। तो एक और इक्वेशन तुम्हें मिला था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिला था, Del हाफ m1 m2 by m1 plus m2 इंटू v स्क्वायर, यही तो था। yes sir. यही आज डिस्कस हुआ था क्लास में। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, कितना एनर्जी लॉस हुआ इनइलास्टिक कोलिशन में, हाउ मच एनर्जी लॉस्ट, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट इन inelastic collision, this value is हाफ एम वी स्क्वायर। नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, बट जब इनइलास्टिक कोलिशन होगा ये एम इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जाएगा m1 m2 बाई m1 प्लस m2। याद रखना, टेंशन में भी यही एक था ना, टेंशन में था ना, when the tension for a coupled connected body m1 m2 by m1 plus m2 समथिंग कुछ आ रहा था ना। सो और ये क्या है, इक्विवेलेंट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है। It is same for the equivalent velocity. If an object is moving certain distance d, move forward, backward, their velocity is v1, v2. Then the equivalent velocity is twice v1 v2 by v1 plus v2. Simply इस sir, yeah, V/2. तो ये सब ये पैटर्न याद रखना, you have to remember this pattern, then you'll put that value। इसमें कोई ये लॉजिक नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी है जो तुम्हें याद रखने के लिए हेल्प करेगा। तुम क्या करोगे, 1/2 m1 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, तो तुम लिखोगे 2 इंटू 9000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 into 9000 9 इंटू v स्क्वायर, दैट इज 5 25। into 5 तुम्हें क्या मिल रहा है, 12.5 ऊपर से नीचे का है, राइट? तुम्हें मिलेगा 12.5। 12.5 joule. वो यहाँ है क्या, देखते हैं, 1 सेकेंड। Why sir 25 sir? v स्क्वायर, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 5 है ना, फाइनल वेलोसिटी बताओ। So we have to take कौन सा initial velocity sir, 36 kilometers sir. इनिशियल किलोमीटर पर, नो इट इज मीटर पर सेकंड में बताओ। 10 मीटर पर सेकंड था, आफ्टर कोलिशन इट इज कन्वर्टिंग इनटू 5 मीटर पर सेकंड, but when you're looking at the formula you'll see that change in kinetic energy is in terms of final velocity, right? Sorry, यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करो, 2 9 18 2 into 9, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 9000 into 9000
ओके इंटू 25 और यहाँ पर होगा 9000 प्लस 9000 दैट इज 2 इंटू 9000 यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा था तो यहाँ से एक 9000 जाएगा और यहाँ से तुम जब डिवाइड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा 4500 राइट then you will calculate the value you are getting 2250 2250 into 25 into 25. ये कर लो करके देखो क्या हो रहा है फाइव सिक्स टू फाइव जीरो आ रहा है ना Yes, sir. हाँ so this amount of energy is lost in the another form that is called heat sound etc right so So when it they is will right ask or wrong, sir? which one So the this answer equation is is right 56250. calculation do the calculation 454500 into 2250 then you are getting 4500 क्या था हाँ sorry 2250 into 25 right 2250 into 25 56250 ठीक है 2250 into 45. हाँ हाँ So 2250 into 4500. हाँ नो ये इसको काट के ही तो ये आया है ये दोनों Sir, के we बीच में have आ take जाएगा M1 equal to M2, sir. हाँ तो क्या हो गया Then we have V square by 2, sir. you are taking m1 is equals to m2 no difference is there Yes, sir. you are getting m square by 2m right half m square by 2m into v square यही तो था m square means 9000 into 9000 right divided 2m 2 into 9000 एक गायब हो गया एक से आएगा 4500 4500 राइट और 4500 को दो से डिवाइड करोगे तो 2250 उसके बाद मल्टीपल करोगे 25 से तो तुम्हें मिलेगा 56250 जूल यस और नो so this energy will lose the system will lose right by virtue of heat and vibration sound etc और कोई भी क्वेश्चन से अगर इनलास्टिक कोलिशन में पूछेगा तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे ठीक है सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ इन पेज नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे कैरियज हो गया व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अच्छा हाँ अब आएंगे हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो क्वेश्चन में देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसको भूल जाओ और फॉर अ मूविंग पार्टिकल फॉर अ क्या लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 5 वन सेकंड what percentage of kinetic energy of a moving particle यहाँ पर होगा of a moving particle is transferred to a stationary particle when moving particle strike with a stationary particle of mass number 1 9 times number 2 equal number 3 1/90 देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल के ऊपर हीट कर रहा है तो एक है m1 दूसरा है m2 अगर ये रेस्ट में है अगर ये कहाँ पर है रेस्ट पे है हम पहले रेस्ट को लेके करते हैं सो if it is in rest then how much kinetic energy is transferred from one object to another object right और ये चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा मास के ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है ना this value will depend on the mass or what is the mass of the particle one second
Okay, so let us find out. U1 U2 U2, हाँ पहले हम इसको रेस्ट मानते हैं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें U1 मिलेगा और U2 0 मिलेगा, राइट। तो दोनों का मास है M1 M2, एक रेस्ट में है U2 0, एक मोशन में है U1, इज दैट। देन यू आर गेटिंग M1 इज समथिंग लाइक M, M2 इज समथिंग लाइक, हमें नहीं पता है, इस हो सकते हैं 2M, हो सकते हैं 3M। यहाँ पर बोला है ना 1/19 इक्वल 9 टाइम, हम मानेंगे कोई भी XYZ एक्स इंटू एम, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, 2 3 4 5। हाँ, अगर ये 10 किलोग्राम है तो 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, अगर ये 20 है तो ये 10 हो सकता है। हमने माना है कोई भी मल्टीप्लीकेशन दैट इज ऑफ एम, एंड U1 is equals to 0, U1 is not 0, U1 is U1 but U2 is 0, ठीक। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा V2 का जो फॉर्मूला है, V2 का फॉर्मूला क्या मिलेगा, वहाँ पर क्या था, M2 क्या था बताओ, M2 minus M1 divided by M1 plus M2, right, into U2 U1 plus U1 नहीं था, U2 था, उसके बाद twice M2 by M1 plus M2 into U1। बट ये जो दोनों M है ना, ये दोनों इक्वल है, तो ये हमेशा 0 ही बनेगा। और यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से तुम्हें मिलेगा V2 equals to twice M divided by twice M into U1। Yes or no? यस सर। और सॉरी, यहाँ पर M2 का जो वैल्यू है XM, नहीं दोनों तो इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल है क्या, एक सेकंड, दोनों इक्वल नहीं है, एक दूसरे के x मल्टीप्लाइड है, राइट। तो हम लिखेंगे M2 इज XM माइनस M डिवाइड बाई XM प्लस M इंटू U2 प्लस ट्वाइस XM बाय 1%, M प्लस XM, राइट, M प्लस XM, ये तो था, इंटू U1। अभी तुम्हें जो मिलेगा ये ऊपर का जो वैल्यू है और U2 का जो वैल्यू है, U2 इक्वल टू 0 था ना, तुम्हें फर्स्ट वैल्यू 0 मिलेगा, और दूसरा जो वैल्यू है, दूसरा वैल्यू जो है क्या मिलेगा, 2XM बाई M प्लस XM, तो तुम्हें मिलेगा 2XM बाई, नीचे से M कॉमन लेना है तो 1 प्लस X U1, ऊपर ऊपर से M गायब, तो मिलेगा ट्वाइस X बाई 1 प्लस X इंटू U1, ये तो मिल रहा है ना। ट्वाइस इंटू M1 इंटू क्या था, अच्छा एक V2 का फॉर्मूला देखो, V2 के फॉर्मूला के M1 था या M2 था, ट्वाइस M1 था ना V2 के फॉर्मूला में। 36% सर। सुनो, यहाँ पर M1 था, ध्यान देना, यहाँ पर M1 था, M2 नहीं था, क्या था, M1, तो ये M बनेगा, XM नहीं बनेगा, तो तुम्हें मिलेगा ट्वाइस M U1, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा 2U1 बाई 1 प्लस X, राइट, 2U1 बाई 1 प्लस X। ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, क्या बोल रहे हो प्रिंस, सर 35 36%। एनर्जी ट्रांसफर, यस सर। अच्छा देखते हैं, तो ये V2 आ गया, अगर ये V2 है तो तुम्हारा यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता ही है, हाफ M U1 स्क्वायर, राइट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो क्या है, हाफ M U1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो क्या है, हाफ M क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एनर्जी जो है
K1 फाइनल और KF1 क्या होगा, हाफ m v1 स्क्वायर, तो तुम्हें मिलेगा हाफ m बिफोर कॉल्यूशन तो हाफ m v1 स्क्वायर था, और आफ्टर कॉल्यूशन क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, हाफ m v2 स्क्वायर मिलेगा, K2। अच्छा एक सेकंड, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉल्यूशन K1 K2 फाइंड करना। एक सेकंड देना, थोड़ा सा इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रहा है शायद। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉल्यूशन हाफ m v1 स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी of the stationary particle after collision, kinetic energy of stationary particle after collision। तो तुम क्या लिखोगे, K2 इज इक्वल्स टू, इनिशियल तो जीरो था, K2 इनिशियल जीरो था ना, तो ये होगा m2 v2 स्क्वायर। तो v2 का वैल्यू हम अभी निकाले हैं, m2 क्या है, mx है, राइट, ये m2 mx है और xm है, और इंटू, और v2 का वैल्यू यहाँ से तुम लिखोगे, यहाँ से यहाँ पर लिखोगे, तो आएगा 4u1 स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें जो मिलेगा वो वैल्यू क्या है, यहाँ से तुम्हें 4 तो मिलेगा, गायब हो जाएगा, तो 2e1 स्क्वायर mx बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, राइट। और ये भी तुम लिख सकते हो 4x बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और हाफ m u1 स्क्वायर। ये हाफ m u1 स्क्वायर को तुम सेपरेट हमने क्यों किया है, क्योंकि ये क्या है, यही तो काइनेटिक एनर्जी था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, राइट। ये क्या था, K1 था, ये तो K1 था, हाफ m u1 स्क्वायर बिफोर कॉल्यूशन, तो इसका हम लिखेंगे K1। सो योर वैल्यू शुड बी, इसको मिटा, सिंप्लीफिकेशन से कोई कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा 4x बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इज दैट मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है ना। जो सेकेंड पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी है वो फर्स्ट पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के 4x बाय 1 प्लस एक्स टाइम है, 4x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स है, ओके। तो कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, जब तुम करोगे तब तुम्हें क्या करना है, K2 बाई K1, तुम्हें क्या मिलेगा, 4x बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अगर परसेंटेज फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो तुम्हें क्या करोगे, इसी को तुम क्या करोगे, K2 बाई K1 इंटू 100 कर दोगे, राइट। तुम्हें मिलेगा 4x बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 100, राइट। और इसके ऊपर तुम कोई भी वैल्यू पुट करो। अब तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे सर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या था, दोनों का वैल्यू तो सेम ही था, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, और एक इंटू 0 था और 9 टाइम्स था, राइट। m2 क्या था, Yes, sir. सॉरी m1, हाँ 9 m1 था m और m2 क्या था, 9 टाइम्स था, x का वैल्यू 9, तो हम लिखेंगे 9 है। अभी तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे सर K2 बाई K1 इंटू जो 100 आएगा वो आएगा 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 1 प्लस 9 होल स्क्वायर इंटू 100, राइट, फॉर परसेंटेज। तो तुम्हें मिलेगा 36 बाई 100 इंटू 100, और एक इसका हम बोलते हैं 36%। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और 9 टाइम्स है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से 9 टाइम्स है, तो इसका जितना एनर्जी था
इसका 36% एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसका जितना एनर्जी था इसका 36% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। बट पूरा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, पूरा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, क्लियर। अब तुम पूछोगे सर पूरा एनर्जी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, ये सर नो। देखो एनर्जी ट्रांसफर बताओ, एनीवन कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द फुल एनर्जी इज नॉट ट्रांसफरिंग although it is a elastic collision? So because the elastic collision are not equal, sir. Elastic collisions particles are not equal. हाँ, ये पूरा आंसर नहीं हुआ, इसका पीछे एक कारण जो है तुम ये भी Sir, देखोगे। because it is not equal in mass. हाँ, ये तो कंडीशन हो गया। देखो Yes, sir. एक बात सुनो, एनर्जी ट्रांसफर तभी होता है व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर ओनली इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दैट मींस जब व्हेन यू आर सेम थिंग तुम देखोगे ये में इलेक्ट्रिसिटी में, व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट, देन यू विल सी दैट द रेक्टिफायर सर्किट और द कपलिंग सर्किट, सो उसमें हम बोलते हैं बाफर, ठीक है ना। जब तुम देखोगे जो एम्पलीफायर होता है ना, एम्पलीफायर आर प्रोड्यूसिंग वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एम्पलीट्यूड करंट, but the speakers are not capable to catch the energy, then we will apply the buffer. उसमें भी तुम देखोगे एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम only when the reactance or the impedance of the two circuit are matching. इसमें क्या होता है, उसमें भी तुम्हारा इम्पीडेंस मैचिंग का एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। दो सर्किट है, सर्किट ए सर्किट बी, एक है एम्पलीफायर दूसरा है स्पीकर। अभी इसका पूरा एनर्जी स्पीकर में तो कब जाएगा, जब ये दोनों का इम्पीडेंस मैच हो जाएगा। और ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, जब दोनों का मास सेम हो रहा है तब 100% एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और जब ही ये वेरिएशन जितना बढ़ेगा एनर्जी ट्रांसफर उतना घटेगा, ठीक है ना। सेम थिंग इज फॉलोड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, एनर्जी ट्रांसफर इन एम्पलीफायर, and same thing is happening here, energy transfer in elastic collision, right? ये हो गया कहानी। तो यहाँ पर तुम्हें दो तीन, अच्छा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 में क्या था, बताओ, दोनों अगर इक्वल हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, इफ m1 equals to m2 equals to m, that means x का वैल्यू 1, राइट। इसमें तुम क्या पाओगे, k2 by k1 into 100, nothing but 4x, that is 4 into 1 by 1 plus 1 square into 100। 100% ही होगा। तो कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर 4, ऊपर 4 नीचे 4 into 100, that is 100%, सेम, राइट। तो जब दो ऑब्जेक्ट इक्वल है, then when they are colliding in hidden collision, then you see that the full energy is transformed from one object to another object. That means if one rest, another one is in motion, another one is rest, दोनों का मास सेम है, एक जगह टकराएगा, इसका जो वेलोसिटी है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, और वन आ जाएगा रेस्ट में, दूसरा आ जाएगा मोशन में, ठीक है ना। if and only if the collision is an elastic collision. थर्ड कंडीशन क्या था, 1/19। हाँ, पुट करके देखो, और क्या, जितना भी वैल्यू पूछेगा तुम यहाँ से पुट करो और सिंपली तुम्हारा आंसर एक के बाद एक 19% आएगा। हाँ, so I think now students can solve the problems by yourself. Okay. हाँ, इसके बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अभी आज उतना टाइम नहीं है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, ठीक है ना। देखो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ना 92 to 35, ये न्यूक्लियस is unstable, and when you are hitting this nucleus with neutron, then the velocity of the neutron when it is emerging from a accelerator or anywhere else for a nuclear, कोई भी nucleus से आ रहा है, the velocity of the nucleus is very high. And what is the condition? The condition of the nuclear reaction is to, the velocity should be a threshold velocity. Threshold velocity. Why is threshold velocity, sir? Because to interact with the nucleus, velocity should be threshold. That means
If the velocity is too much, then the neutron will penetrate the nucleus and move ahead. It will not perform the nuclear reaction. ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए जबकि वो जाके न्यूक्लियस में एब्सॉर्ब हो जाए. ठीक है ना? ये भी तुम न्यूक्लियर जब पढ़ोगे एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ोगे. ठीक है ना? न्यूक्लियर फिजिक्स में है पूरा theory. So the velocity should be threshold velocity. Is that's why we are calling it slow moving neutron. Slow moving neutron. ये स्लो न्यूट्रॉन को स्लो करना होता है. So to make this neutron slow, we are using D2O. D2O means हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है ना, प्रोटियम, डॉयटेरियम, ट्रिटियम. Tritium. H11, H12, H212, H13. H13. Yes, sir. ये डॉयटेरियम जो H12 ये आइसोटोप जब ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होगा तब वो क्या बनाएगा? D2O. इसको हम बोलते हैं भारी जल भी बोलते हैं. ठीक है ना? Heavy water. हेवी वाटर. और इसको हम और लगा सकते हैं कार्बन रॉड, इसलिए इसका हम बोलते हैं मॉडरेटर. जब तुम पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्टर, हाउ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज वर्किंग, व्हाट इज द कंडीशंस, और इसमें हम क्या क्या करते हैं टू मेंटेन द न्यूक्लियर रिएक्शन. न्यूक्लियर रिएक्शन का एक बहुत बड़ा कहानी है. ठीक है? तो इसमें क्या है, न्यूट्रॉन जब बाहर आते हैं बहुत हाई वेलोसिटी से, 3 न्यूट्रॉन बाहर आते हैं. ठीक है ना? 3 न्यूट्रॉन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द यूरेनियम न्यूक्लियस एंड देयर वेलोसिटी इज वेरी हाई, and we have to decrease the velocity to do the nuclear reaction. Now it is a chain reaction. From one nuclear reaction, 3 neutrons are producing, and from 3 into 3, from and the next step, next instant 9 into 3. और ये क्या है, ये बढ़ता ही जाएगा. एक इंस्टेंट में thousands of millions of neutrons will produce from the in a single instant, and we have to control it. हमें क्या करना है, ये सब न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना है, नहीं तो the nuclear reactor will explode. So for one nuclear reaction, some mega electron volt energy is coming out of the reaction. So these energies, we are using this energy to boil the water or heat the water, and we are using the steam for production of electricity, right? और इसमें क्या है, controlled nuclear reaction is very very important to run the nuclear reactor. और इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन के स्पीड को घटाते हैं. यू हैव टू डिक्रीज द न्यूट्रॉन स्पीड एंड यू हैव टू कंट्रोल द न्यूट्रॉन्स. तो यहीं से क्वेश्चन पूछा है, दैट इज व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रॉन व्हेन इट इज कोलाइडिंग विथ डॉयटेरियम, दैट इज H12. यही तो है ना क्वेश्चन, न्यूट्रॉन. So when it will collide with this nucleus, what will be the energy transfer and all these things, ये सेम ही है, यही फॉर्मूला आएगा. ठीक है ना? और यही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला, फॉर्मूला डिराइव करना सेम है. हम नेक्स्ट डे देखेंगे. ये जो फॉर्मूला है ये आएगा 4m बाई 4 कैपिटल M स्मॉल m बाई, इसमें क्या आएगा, इसमें जो रेशियो आएगा K2 बाई K1 का, ये आएगा 4 कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू क्या आएगा, U स्क्वायर. ठीक है ना? ये तो आएगा नो U स्क्वायर. तो इसमें क्या आया था, इसमें क्या आया था 4x बाई 1 प्लस x होल स्क्वायर, ये है 4. अच्छा, इसमें भी स्क्वायर है. हाँ, यही आएगा. रेशियो कहाँ गया है, हाँ 4x बाई 1 प्लस x होल स्क्वायर, राइट. और यहाँ पर आएगा 4 कैपिटल M स्मॉल m बाई दिस वैल्यू होल स्क्वायर. ठीक है? अगर हम यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम मानते हैं कैपिटल M इज ट्वाइस ऑफ स्मॉल m, तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ. तुम्हें मिलेगा 4 इंटू ट्वाइस m इंटू m डिवाइड बाई 2m प्लस 3m स्क्वायर, राइट. ये भी लिख सकते हो. हाँ, कैपिटल M इज इक्वल्स टू xm लिखो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 4xm इंटू m डिवाइडेड बाई xm प्लस m होल स्क्वायर, राइट. तो तुम्हें मिलेगा 4xm स्क्वायर
यहाँ से एम स्क्वायर बाहर आएगा, क्या मिलेगा x प्लस 1, और यहाँ से ऊपर से नीचे कट जाएगा 4x बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखो यही तो फॉर्मूला आ रहा है, राइट? कौन कौन हो भाई? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट? रॉबर्ट, प्रिंस, भवेश, पपुला, हेमंत, देवर्घ। ओके, तो बताओ क्लास में कोई लाभ हुआ है? इज इट बेनिफिशियल और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कितने परसेंट समझ में आया आउट ऑफ 100? Sir, 80 दे सकता हूँ। 80%। प्रिंस बताओ। मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं किया ना क्लास में, ये तो 80% अगर करूंगा या भवेश 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 को 80% आया है। प्रिंस बताओ। सर 90-95 सर। एक क्वेश्चन सर वो जो आपने रॉन्ग किया या राइट पता नहीं चल रहा सर। कौन सा वाला? वो वाला डेल्टा के? ये सर, हाँ सर, ये वाला। क्लास में फिर से बताना। ओके सर। अच्छा चलो ठीक है। ओके, सो आज तक इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलो, बाय गुड सर। नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night, sir. Okay, good night. Attend the school next day.